Hi everyone, welcome back to the channel. Are you facing problem or challenges with your JIPMAT mocks? Are you struggling with a definite strategy which you should follow? Are you struggling with getting good marks? Right? If you're struggling with all of these questions, in this video we're going to discuss on this topic. Okay, so I have few questions which many of my viewers ask me in my live sessions, in the comment box, on my WhatsApp. Okay, so here are some of the list of the questions which I will be answering in this session, starting with which section to go with the first, right? It's a very important question because many of us start with the section which is not meant for us, right? तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे. The next question will be how to manage time between the sections, है ना? How much maximum time to give to a specific question, है ना? How important is it to keep a time track of the how much time has spent, right? What will make your marks increase or score increase in your mocks and in fact in your exams as well? ठीक है? How to manage stress and pressure, what to do with the questions you think you are able to do but you are not able to do at that point of time. Like तुमको वो क्वेश्चन आता है फिर तुम कर नहीं पाते, right? So answering all of these questions, I hope you will enjoy the session and you will like gain a lot of knowledge to improve your GitMap scores. I am Vaibhav Goenka doing my BBA from IIM Bangalore. So yeah, do my live streams daily. Make sure to join them and clear your doubts. We have also a WhatsApp community. You can join it by the link of which is given in the description box. And yeah, let's begin. Please make sure to hit the like button and subscribe to the channel. A video is coming soon on the JIPMAT 2025 expected cutoff scores. So yeah, let's begin this video. है ना? So the most important question: which section to go first with? ठीक है. देखो, what I used to do during my JEPMAT exam and my mock journey, I used to start with the sections जो आता जा रहा है. Like क्या होता है JEPMAT में? The first section is of quants, the second section is of logical reasoning, the third section is of VRC. What I used to do कि फ्लो के साथ जाता था. मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मैं कौन से स्टार्ट करूंगा, एक एक करके क्वेश्चन पे जाऊंगा. क्या मुझे कौन का पहले क्वेश्चन आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो आई विल स्किप इट, मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. तो ऐसे में एक बार ही पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता क्वेश्चन का. ठीक है, पूरे सारे 100 क्वेश्चन का. दिस इज समथिंग आई यूज टू फॉलो बिकॉज मेरा जो था, मेरा कौन स्ट्रॉन्ग पोर्शन था. मुझे कौन अच्छी लगती थी, मुझे कौन से मैं टाइम दे सकता था. ठीक ठीक है. सो इट्स अप टू यू कि तुम्हारा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है. द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू गिव मॉक्स एंड हर मॉक्स में भी अलग अलग स्ट्रैटेजी ट्राई करो और देखो तुम कहाँ कंफर्टेबल हो. वन ऑफ माई व्यूअर्स को मैंने ये बताया था कि आप कैसे अपना मॉक स्कोर इंक्रीज कर सकते हो, कि आप अपने अपने हिसाब से स्टार्ट करो सेक्शन को. तो फर्स्ट शी यूज टू ट्राई विद द क्वांट्स का सेक्शन. ठीक है. तो उसका मतलब वहां पे मार्क्स नहीं बन रहा था. पर देन शी स्टार्टेड विद द इंग्लिश VARC सेक्शन एंड देन इवेंचुअली शी मूव टू द लॉजिकल रीजनिंग एंड देन क्वांट्स एंड दिस मेड हर इंक्रीज हर मॉक स्कोर, राइट? तो ऐसा आपके संग भी हो सकता है. तो आप अपना स्ट्रैटेजी डिसाइड करो, आप ट्राई करो मॉक्स के संग. कभी आपने VARC से स्टार्ट किया, फिर आप एक दिन लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करो, फिर कभी कौन से स्टार्ट करो और देखो कि कहाँ पे आपका मार्क्स अच्छा बन रहा है और कहाँ आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, राइट? सो यू दिस इज अप टू यू यार, तुम कैसे डिसाइड करते हो. मेरा जो बिलीव है, लाइक अगर आपकी कौन स्ट्रांग है तो आप QA LR VRC के संग जाए, ऐसा तीन कंटिन्यू दिस. अगर आपकी VRC स्ट्रांग है तो आप VRC लॉजिकल रीजनिंग क्वांट्स या VARC क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग, इस चीज को फॉलो करें. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप स्ट्रैटेजी बनाओ. अभी भी वी हैव अराउंड 5 to 6 days, है ना? आप मॉक्स दो, 7 मॉक्स दे देना. ठीक है. और हर मॉक में अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करना, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है और कहाँ आपका मार्क्स आपका मैक्सिमाइज हो रहा है. ठीक है. ठीक. सो द सेकंड क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड अ लॉट इज हाउ मच टाइम टू ईच सेक्शन. कौन सा कितना टाइम दे, लॉजिकल रीजनिंग को कितना टाइम दे, VRC को कितना टाइम दे, राइट? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता होगा, राइट? देखो, मेरा जो मानना है वो ये है कि कौनस लेंदी आती है, लॉजिकल रीजनिंग भी लेंदी आती है. पर VARC जो देखा गया है ओवर द पास्ट 2 to 3 years, VARC इज कंपेरेटिवली जल्दी होने वाला सेक्शन. वो अराउंड अब 30 मिनट्स to 35 मिनट्स मैक्स में आप कंप्लीट कर सकते हो अगर आपको ढंग से VARC आती है. ओके. सो माई रिकमेंडेशन वुड बी maximum 60 minutes to QA in the first round, maximum 50 minutes to the logical reasoning in the second round, and maximum 35 minutes to your VARC. ठीक है. तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, लाइक 60 मिनट्स हो गया आपका QA का, your 50 minutes हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग का, दिस मेक्स 110 minutes, राइट? एंड देन यू डिसाइडेड टू गिव 30 to 35 minutes to VRC. Okay, this is making 140 to 145 minutes. Let's assume 145 minutes. After that you are remaining with 5 minutes. ठीक है.
तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी तो नहीं मानी गई, पर ये एक ऐसा टाइम बताया मैंने मैक्सिमम टू ईच सेक्शन इन द फर्स्ट गो, है ना? तो लाइक क्या होता है कि कॉन्ट्स शायद डिफिकल्ट आ जाए, लेंदी आ जाए, इसकी वजह से 60 मिनट्स मैक्सिमम। पर अगर कॉन्ट्स ईज़ी आ गई और लेंदी नहीं आई, तो आपका कॉन्ट्स का सेक्शन अराउंड 50 टू 40 मिनट्स में हो सकता है, 40 टू 50 मिनट्स में। तो वहाँ पे आपका टाइम बचेगा, फिर आप लॉजिकल रीजनिंग में जाओ, आप फिर उसमें भी वापस लॉजिकल रीजनिंग 50 मिनट्स मैक्स दो, है ना? आप जब इस चीज़ को फॉलो करोगे, तो आपके पास एंड में ज़्यादा टाइम बच जाएगा। वो 5 मिनट का टाइम नहीं बचेगा, बफर वहाँ पे 5 मिनट का नहीं बचेगा, वहीं 15 से 20 मिनट का बफर बच सकता है। मेरा 2024 के एग्ज़ाम में यही हुआ था जेपमैट के, कि मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी, तो मेरे लास्ट में 20 मिनट्स बच गए थे टू गो बैक टू द क्वेश्चंस एंड वहाँ पे मैं सही करूँ, ठीक है? जो मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पाए इन द फर्स्ट राउंड। तो आपको भी ये चीज़ फॉलो करनी है और उससे आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, ठीक है? आई होप यू आर लाइकिंग द insights. If yes, please make sure to hit the like button. Baki, if you want to take a counseling call and clear your doubts, you can also take that for rupees 69. The link, the details are given in the description box. Check it out. Okay. So the next question is how much time to give to a question? Like एक क्वेश्चन को 15-20 मिनट तो नहीं दिया जा सकता, राइट? तो मैक्सिमम इन द फर्स्ट राउंड आप किसी क्वेश्चन को मैक्सिमम 3 मिनट दो, ठीक है? लाइक आपने 2 मिनट दे दिया, आपको लग रहा है, आपको पता चलेगा 2 मिनट देते-देते क्या मुझसे ये क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है नहीं होगा, तो लीव इट फॉर द एंड, वहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। पर आप 2 मिनट बाद लग रहे हो कि मैं 2 से 3 मिनट और लेके इसको कर सकता हूँ, क्वेश्चन को हो जाएगा मुझसे, तब वहाँ से आप 2 से 3 मिनट का टाइम एक्सटेंड कर लो, ठीक है? क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको 3 मिनट नहीं लगने वाले हैं, राइट? कुछ क्वेश्चन आपका 30 सेकंड्स में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके 2 मिनट लेंगे, कुछ क्वेश्चन आपका 1 मिनट लेगा, क्योंकि क्वेश्चन की डिफिकल्टी अलग-अलग होती है, राइट? तो अब ये आप पर, आप कैसे डिसाइड करते हो, पर मेरा जो मानना है कि मैक्सिमम 3 मिनट्स टू अ क्वेश्चन इन द फर्स्ट राउंड। ओके, या बाकी देखो, द टाइम यू विल हैव टू गिव टू क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन योर डिफिकल्टी, है ना? तो ये चीज है। बाकी प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू कीप अ वॉच ऑन टाइम? ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यार। मतलब अगर तुम्हें टाइम का ही नहीं पता कि क्या चल रहा है, कितना टाइम बचा है, कितना टाइम हो गया है, तो यू विल फेस डिफिकल्टीज इन द एंड, बिकॉज शायद आपका पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना? या आपका पेपर बहुत देर में होगा, है ना? लाइक आपको लगेगा अरे केवल 5 मिनट बचे हैं और 10 20 क्वेश्चन बचे हैं करने के लिए। इसीलिए टाइम पे बहुत अच्छा फोकस रखें। मैक्सिमम जैसे पता है ना, 3 मिनट्स का राउंड, तो उस पर ध्यान दो कि आप किस क्वेश्चन में किस टाइम पर आए हो। 3 मिनट से ज्यादा नहीं दोगे। अगर 3 मिनट से ज्यादा दे रहे हो, तो लास्ट में आके देखना उस क्वेश्चन को, फिर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि कभी कोई कोई क्वेश्चन होता है कि स्टार्टिंग में आता नहीं है। लेट्स आंसर दैट क्वेश्चन ओनली, कि आपने पढ़ा हुआ है, आपने अपना मॉक टेस्ट में आपने प्रैक्टिस टाइम पे लगाए हुए क्वेश्चन, फिर आपको एग्जाम के टाइम पे वो हिट नहीं करेगा कैसे सॉल्यूशन होना है, एंड दैट इज कंप्लीटली कॉमन, राइट? तो आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चंस पे दोबारा आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वापस आना है। तब तक आपने और 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, तो आपका दिमाग वापस एक बार फ्रेश लेवल पे हो जाएगा कि ठीक है, अब इस क्वेश्चन को वापस से दोबारा स्टार्ट करते हैं, एंड इवेंचुअली आपका आंसर इसमें हिट भी हो जाएगा, ठीक है? व्हाट विल मेक योर स्कोर इंक्रीज? ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिंपल एज दैट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्कोर इंक्रीज होगा, बिकॉज जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे, उतना ज्यादा बाकी क्वेश्चंस को लगा पाओगे, उतना जल्दी आपका पेपर खत्म होगा, और जितना जल्दी पेपर खत्म होगा बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को उतना ज्यादा टाइम दे पाओगे, ठीक है? तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट दिमाग में रखने वाली है, ठीक है? या मॉक्स को जब दो, उसको एनालाइज करो अच्छे से, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को एनालाइज करो कि स्ट्रेंथ क्या है। अगर तुमको पता चल गया तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तो तुम स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हो, राइट? और फिर इसको और ज्यादा जल्दी हो जाएंगे तुम्हारे वो क्वेश्चंस, ठीक है? वीकनेस जो है, तुम्हें वीकनेस अपनी पता है, तुमको पता है कि ठीक है इस क्वेश्चन में मैं वीक हूं, आई विल कम एट द एंड। तो एनालाइज करो मॉक्स को ज्यादा से ज्यादा, एंड इट विल गिव यू क्लियर presence of mind. Okay, then we have a question, how many rounds are considered good, right? What do you mean by राउंड का मतलब है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन पे गए, तो हमारा फर्स्ट राउंड हो गया। उस बीच में हमने किसी क्वेश्चन में हम दोबारा नहीं गए। तो सेकंड राउंड में क्या, हम उस क्वेश्चन पे दोबारा गए, उन क्वेश्चन पे जो मैंने मार्क कर लिए थे, मार्क फॉर रिव्यू कर लिए थे, है ना? तो वो सब चीजें। बाकी या मार्क फॉर रिव्यू से याद आया मुझे कि आपको लगे कि ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में करूंगी, तो ऐसे क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू पे रख लीजिए, ठीक है? मार्क फॉर रिव्यू रखने से ये होगा कि आपको बाद में क्वेश्चंस ढूंढने नहीं पड़ेंगे। मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिएगा, मार्क फॉर रिव्यू एक पर्पल बैच आ जाता है आपकी क्वेश्चन पर, ठीक है? दैट विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम, ठीक है? एंड या 3 राउंड इज गुड। अगर आप पहले राउंड के बाद, दूसरे राउंड के बाद, तीसरे राउंड तक जा रहे हो, 3 राउंड इज कंसिडर्ड वेरी गुड, ठीक है? 2 राउंड इज गुड, 3 राउंड इज वेरी गुड। सो मॉक ज्यादा दीजिए, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, तो टाइम कम लगेगा, इवेंचुअली इट्स लाइक बेटर होता रहेगा, ठीक है? स्कोर।
और क्या अमेजिंग क्वेश्चन एक और है, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस एंड प्रेशर। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे क्या होगा, क्या होता है जनरली, मैंने देखा है, मेरे संग हुआ है कि ड्यूरिंग माय जिपमार्ट एग्जाम आई वाज नॉट एबल टू आंसर लाइक ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई ड्यूरिंग द एग्जाम इन 2023। ठीक है, सो इट इज अ कंप्लीटली नॉर्मल बिहेवियर अमंग द एस्पिरेंट्स। जब उनके पास नर्वसनेस होती है, उनके पास एक प्रेशर होता है कि मुझे इस एग्जाम को कैसे भी करके क्लियर करना है, राइट। आप उस टाइम पे दो चीजें कर सकते हो, ठीक है, वो करनी है दो चीजें। द फर्स्ट थिंग इज टेक डीप ब्रीथ्स। ठीक है, आप जितने डीप ब्रेथ्स लोगे उतना बेटर रहेगा, आपका दिमाग काम होगा और आप अपनी सिचुएशन को, दिमाग को बताना कि देखो मेरे आसपास ये चल रहा है, दीज आर द सिचुएशंस व्हिच आई एम फेसिंग राइट नाउ, मुझे इससे कैसे ओवरकम करना है, मुझे इसको कैसे हैंडल करना है, ये आपको डिसाइड करना है, राइट। और या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपका एग्जाम करते करते आप परेशान हो जाओ कि मुझसे नहीं हो रहे क्वेश्चंस, मुझसे नहीं हो रहे क्वेश्चंस, ऐसा लगने लगे, तो व्हाट यू कैन डू इज टेक अ 2 मिनट पॉज। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बैठ जाओ, अपने आप को समझाओ, अच्छा ठीक है, ठीक है, मैंने पढ़ा है, मैंने प्रेशर ले लिया था, लेकिन अब मैं वापस से स्टार्ट करूंगी या करूंगा, एंड इवेंचुअली आई विल इंक्रीज माई स्कोर। ठीक है, आई विल डू माई एग्जाम वेरी वेल। ऐसा अपने आप को कामनेस रख के बताओ। एक एग्जाम को प्रेशर में देना इज वेरी बैड। उससे बेटर है कि अपने आप को 2 4 5 मिनट दे दो, बिकॉज 150 मिनट का एग्जाम है, ठीक है। 2 4 5 मिनट लेके अपने आप को काम डाउन करके सेटल डाउन कर लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन सब सिनारियोज में आप बहुत बहुत ध्यान दें, ठीक है। और यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखो। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो हमारी लाइव स्ट्रीम में भी आते हैं, दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस, लाइक वो डरते हैं कि क्या होगा एग्जाम में, क्या होगा एग्जाम में। आपने प्रिपरेशन करी है, ठीक है, आपने अपना बेस्ट दिया, अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो फिर आपको सोचना ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बिलीव इन द गॉड्स प्लान। आपने अपना अच्छा दिया है, अगर ऐसा नहीं होता है तो देयर आर मेनी अदर एक्स ऑप्शंस व्हिच यू कैन डू। आए भी सब कुछ नहीं होता है, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शंस। हाँ, और मतलब यू विल डेफिनेटली फाउंड मोर रिलायबल वे, मोर गुड वे। सो ट्रस्ट इन द गॉड्स प्लान, ट्रस्ट करो कि गॉड जो चाहते हैं वो अच्छा होगा। देयर इज अ पावर्स इन द यूनिवर्स व्हिच हैंडल्स एवरीथिंग, ठीक है। सो ट्रस्ट द गॉड्स प्लान, ट्रस्ट द गॉड्स टाइमिंग। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है एग्जाम के टाइम, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है रिलेटेड टू जिपमैट मॉक स्ट्रैटेजी, which calls you to join, you can take a counseling session, you can also comment your questions in the comment box, I will get back to you. You can join the live streams daily, you can yeah, there are plenty of options to meet, like contact me, join their WhatsApp community, है ना। So I hope this video was very insightful for you all. Please make sure to hit the like button, channel को subscribe कर लेना, and yeah, let's meet in the next video and in the live stream. Bye till then, bye bye, take care, prepare well, all the best.